Yes, tell me. Yes, Lisha. Do you know about the Hitler? Do you know about the personality of Hitler? Nitesh? Yes, ma'am. Speak up. Yes, Nitesh, speak up. Speak up, speak up. Good one. Anushka, open your video here. Jayaprakash. जयप्रकाश ओपन योर वीडियो बेटा. अब डिस्कशन कर रहे हैं हम. डिस्कशन करते वक्त आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए प्लीज. ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज ओपन योर वीडियो एट द टाइम ऑफ डिस्कशन. पूजा, रुचि, मैं बार बार नहीं कहूंगी बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहना. यू आर अ गुड स्टूडेंट्स. आप छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको समझाना पड़ेगा. Yes, Nitesh want to say something about Adolf Hitler. No. Jatin. Jatin, you want to say something about Adolf Hitler? No, ma'am. सच सच बताओ किसने घर पे चैप्टर पढ़ा था. सच सच बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा. हमने मैम नहीं पढ़ा. मैम नहीं पढ़ा. हमने पढ़ा है. हर्ष ने पढ़ा है. यस मैम. और किसने पढ़ा है हर्ष के अलावा एक्सेप्ट हर्ष? Nobody. This is wrong. फिर मैंने आपको क्यों बताया कि कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? क्यों मैंने आपकी चॉइस पूछी? बताइए. Why I asked your choice कि कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे? रियान, गुड मॉर्निंग. Riyan, just unmute yourself and say good morning. Good morning, ma'am. जय, आपकी शक्ल नहीं आ रही है. जय, बुक नहीं देखनी मुझे, जय को देखना है अभी तो. हाँ जी, बताइए जल्दी. स्पीक फास्टली बेटा. मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ेंगे, तो आपको नहीं, आपका फर्ज नहीं था कि आप पढ़कर आते उस चैप्टर को, चाहे 1 पेज पढ़कर आते या 2 पेज पढ़कर आते, पर आते तो सही पढ़कर भाई. लीशा गलत बात, हिना गलत बात, कोई नहीं पढ़कर आया. कल से आप लोग चैप्टर पढ़कर आएंगे. मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से. फाइन? इज इट फाइन? ओके. Yes, Now today we will start with the new chapter, that is Nazism and the rise of Hitler. Nazism, and in this chapter, first of all, we will talk about many topics. First of all, we will talk about the introduction of Nazism and the rise of Hitler. Fine. Today, first of all, we will start with the introduction. इसका इंट्रोडक्शन क्या है? आपको, आप लोगों ने बुक तो पढ़ी ही नहीं, चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको स्टोरी बतानी थी मुझे आप लोगों को, और वो स्टोरी तभी पॉसिबल है जब आप खुद पढ़कर आएंगे. आपको यहाँ पर एक पीपीटी नजर आ रही है, यहाँ पर आपको एक स्लाइड नजर आ रही है. यस मैम. यस मीत, गुड मॉर्निंग. मीत, यू वांट टू से समथिंग? Yes ma'am. यस, स्पीक अप. About the Nazis of Hitler. हाँ, स्पीक अप. Hitler has a rise to power being in Germany in September 1919 when Hitler joined the political party that's known as the System Execution DAT. The name was changed in 1920 to the National. Meet, you are studying from your book. This is, you are reading from your book, beta. Meet, you are reading from your book, beta. So ma'am. कोई बात नहीं. Just lower your hands now. It's okay. चैप्टर पढ़ा था ना कल. Okay. अभी क्लास में चैप्टर पढ़ा था ना, याद आ गया. अच्छा, चलिए बताइए बाकी सब. आप प्लीज ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज एंड जस्ट राइट डाउन. वी आर स्टडिंग द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. In this chapter, we will clear our concept about the Nazis.
This is the first slide. I want to tell you about the contents of this chapter. First, we will talk about the birth of the Weimar Republic. After that, we will talk about Treaty of Versailles, then effects of war, political radicalism and the economic crisis, the years of depression, effect of Weimar Republic, then Hitler's rise to power and the destruction of democracy. After that, police force. After that, reconstruction, the Nazi worldview, the racial utopia, youth in Nazi Germany. All of you, please mute yourself. The Nazi cult of motherhood, the art of propaganda, crimes against humanity, and knowledge about the Holocaust. All these content we will cover in this chapter. Is it clear? Students, is it clear? Yes, ma'am. Which Yes, contents today we will cover today? In this chapter, how many contents we will discuss about? First of all, we will talk about the introduction of Nazism and the rise of Hitler, then birth of the Weimar Republic. After that, we will talk about the effect of the war, political radicalism and the economic crisis. After that, we will talk about the year of depression. After that, we will come on the Hitler's rise to power. Then the destruction of democracy. Then we will come on the Nazi world view. Then racial states. Then racial utopia. And after that, we will come on the youth in Nazi Germany. All these topics are very important of this chapter. And in this chapter, first of all, I introduce you about the Germany. The intelligence agent of German army formed a group in 1919, in 1920. And first of all, I am talking about the German army that formed a group. उन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया? 1919 में एक आर्मी का ग्रुप बनाया. किसने? जर्मन आर्मी ने. And in 1920, it adopted the name of Nationalist Socialist German Workers' Party or the Nazi Party. It was one of the many groups that had came into being, the one to protest against the term of Treaty of Versailles. In this chapter, we will talk about the power of Jews, the exploitation of the moneylenders. After that, we will come on the Adolf Hitler. Excuse me, ma'am. Yes. वर्सलाइज का मतलब क्या होता है? Sorry. वर्सलाइज का मतलब? Versailles is a type of a treaty. आप लोगों ने बहुत सारी ट्रीटी पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? What do you mean by treaty? मैम समझौता. समझौता, संधि, है ना? तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. वर्सलाई का मतलब एक संधि है, एक तरह का समझौता है जो हम जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहां पर जर्मनी जो था वो अपना जो ओवरसीज कॉलोनीज थी उनको किस तरीके से उसने लूज कर दिया और किस तरीके से उसके साथ फिर क्या की गई? ट्रीटी की गई. In this lesson, explain the rise of Hitler and his art propaganda, the areas on which he concentrated to make Germany a world power. ये तो सबको पता है कि हिटलर जर्मनी को सबसे बड़ा क्या बनाना चाहता था? वर्ल्ड पावर बनाना चाहता था. Everybody knows this. पता है आप लोगों को, सबको या नहीं पता? Yes, ma'am. सबको पता है ये चीज? हाँ. तो देखो बेटा, ये जो हम फर्स्ट पेज जो आपका है इस चैप्टर का, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें जो फर्स्ट पेज आपका है आपकी बुक में, उसमें एक स्टोरी बताई हुई है. ठीक है? उस स्टोरी के थ्रू हम कहां पर जाएंगे? फ्लैशबैक पे जाएंगे. ये स्टोरी बताई हुई है, ये स्टोरी रिसेंटली स्टोरी है, उसके बाद हम फ्लैशबैक पे जाएंगे. इस स्टोरी में क्या बताया गया है? प्लीज जस्ट ओपन योर बुक्स. Everybody, please open your book. Fine. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone.
प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ बेटा, जब तक आप लोग अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। स्प्रिंग 1945 की बात है। एक 11 इयर्स ओल्ड, एक 11 साल का एक छोटा बच्चा जिसको हम जिसका नाम क्या था, हेलमुट। His name was Helmut and he was heard his parents discussing. उसके फादर और मदर कुछ डिस्कस कर रहे थे और वो उन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीत अपने मम्मी पापा की बातें बहुत गौर से सुनता है कि नहीं सुनता है जब पापा मम्मी डिस्कस कर रहे होते हैं? क्यों मीत ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे क्यों मना? हाँ अंकित, आपके साथ ऐसा होता है? अनुष्का, आपके साथ ऐसा होता है जब मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं तो हम लोग भी कान लगा के बहुत अच्छे से सुनते हैं? हाँ यस मीत, मैम सुनते तो समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता? अच्छा, ऐसा भी कभी कभी होता है। हाँ मैम बड़ों के बीच की बात होती है। मैम बड़ों के बीच में दखल नहीं डालना चाहिए। सॉरी बेटा, क्या? तो हेलमेट के साथ भी यही था कि जो हेलमेट था वो अपने मम्मी पापा की बातें बहुत ढंग से सुन रहा था, अपने पेरेंट्स की डिस्कसिंग को सुन रहा था। एंड हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. वो ये डिस्कस कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ कि हमें अब क्या स्टेप लेना है, हमें अब क्या करना है। उसके फादर जो थे एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। डू यू नो हु इज फिजिशियन? कौन होता है फिजिशियन? क्या करता है फिजिशियन? का क्या काम होता है? फिजिशियन कौन होते हैं? प्रोमिनेंट फिजिशियन। प्रोमिनेंट का मतलब इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, यानी वो एक इम्पोर्टेंट फिजिशियन का मतलब क्या होगा? What do you know about the physician? A type of doctor. A type of doctor। वो क्या करते हैं पता है आप लोगों को? डॉक्टर्स क्या करते हैं? सुई लगाते हैं। सुई लगाते हैं। इट्स ओके। और मैम शायद ब्रेन के डॉक्टर। शायद ब्रेन के डॉक्टर होते हैं। कोल्ड या फीवर के। कोल्ड या फीवर के। ओके अच्छा, जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, वो मोस्टली जो आपका सर्जरी वगैरह का जो काम है और जो आपको देखने का काम है, आपको डॉक्टर्स जो है वो फिजिशियंस ही देखते हैं। आप लोग जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, आप बहुत Yes, सारे ma'am. डॉक्टर्स को दिखाते हैं। ओके यस मैम। यस मैम। तो वो जो डॉक्टर आपको देखते हैं दैट इज नोन एज द फिजिशियन। और ये जो फिजिशियंस होते हैं ये अपना वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। अगर डॉक्टर अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? डू यू नो दैट? कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? ढंग से ठीक ही नहीं होंगे। यस मैम, और मैम बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। अच्छा, तो जो हेलमेट था, जो छोटा बच्चा हेलमेट था, यस मीत, व्हाट हैपेंड विद यू? मीत, यू वांट टू से समथिंग? मैम रास्ते तो मैम ये मीट कौन है? मीत, सबसे पहले आप अपना नाम चेंज करिए। आपने राज सिंह जो डाल रखा है ना उसको चेंज करो और उसमें लिखो अपना नाम। हमारे नाम ही है मैम, नाम ही हमारा सॉरी यही है। सॉरी, हमारा नाम ही यही है। आपका नाम मीत है हमारे रजिस्टर में। प्लीज राइट डाउन मीत, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी मीत क्लास से। प्लीज जल्दी मैं वो तो करो। करते मैम, मैं दूसरा मैं मीट कौन है मैम? दूसरा क्या बात है मीत? मैं दूसरा मैम मीट आया मैम नया। मीट मैम दो हो गए मैम। दो मीत हो गए मतलब मैं समझी नहीं। मैम हमारी- मीत ऐसा बोल रहा है है। कि वो तो एक राज सिंह है और मैम एक और कोई आया है मीत के नाम से एंट्री हाँ किए। मैम। हेलो, हु इज दिस मीत? हु इज दिस मीत? म्यूट Okay. पड़ा अभी। कोई बात नहीं, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। लेकिन जो भी है आप लोग प्लीज अपनी नाम अपने अकॉर्ड, मतलब अपना नाम पूरा लिखो। मीत सिंह जो भी नाम है आपका, मीत अपना नाम लिखो, राज सिंह मत लिखो क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उससे। मैं खुद हम भूल एक और जाती है हूँ कोई राज कृष्णा सिंह। नाम से। कौन है राज सिंह?
कोई राज सिंह नहीं है, मीत है हमारी क्लास में। मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगी इस तरीके से आप लोग करेंगे तो। और ये कृष्णम कौन है? हु इज दिस कृष्णम? मैम हम न्यू स्टूडेंट कृष्णम। ओके, यू आर अ न्यू स्टूडेंट कृष्णम। यस मैम। कैन यू शो मी योर फेस? कैन यू प्लीज ओपन योर वीडियो? आई वांट टू सी योर फेस बेटा। ओके कृष्णम, आप कौन से स्कूल से आए हैं? मैम आई एम स्टेपिंग स्टोन। Okay, fine, beta. Today you have joined your class. यस This is मैम। your first class. यस मैम। Okay, Krishnam. Fine, good one. Yes, students, we are talking about the story of Helmut. And Helmut was a small boy, and he was an 11-year-old German boy, and he was listening his parents discussing about the serious tone, and his father is a prominent physician, and he was discussed with his wife that what we should commit suicide, or what we should we now do for the entire family. Now when they are discussing about this, all these things हेलमट was listening. और हेलमट जो था वो उस चीज को बहुत बारीक से, बहुत अच्छे से, ध्यान से सुन रहा था. एंड ही वाज लिसनिंग दैट हिज फादर वाज स्पोकन अबाउट द fear of revenge, and he wants that he was a person of a Adolf Hitler, of a follower. और उसके जो फादर थे, he was a उसके फादर जो थे वो किसके फॉलोअर थे? हेलमट के जो फिजिशियन, जो डॉक्टर फादर थे, वो किसके फॉलोवर थे? He was a follower of Adolf Hitler. किसके follower थे? Adolf Hitler के. फाइन. हिटलर जो था वो जर्मनी को सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनाना चाहता था. वो चाहता था कि जो जर्मनी है वो सबसे ज्यादा क्या बन जाए? पावरफुल बन जाए. इज इट क्लियर? यहाँ तक स्टोरी सबको समझ में आ रही है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर जो था, जो हेलमट के जो फादर थे, वो एडोल्फ हिटलर के क्या थे? एडोल्फ हिटलर के फॉलोवर थे. और हिटलर ये चाहता था कि जर्मनी जो है वो पूरी तरह से पावरफुल बन जाए. ओके, वो चाहता था कि पूरा यूरोप जो है वो मेरे कब्जे में आ जाए. मैं पूरे यूरोप को क्या कर लूं? अपने कंट्रोल में कर लूं. और वो क्या चाहता था? वो यहूदियों को, यहूदी ज्यूज जो थे, वो ज्यूज को क्या करना चाहता था? ज्यूज को किल करना चाहता था, उनको मरवाना चाहता था. और 1945 में उसने अपने जो अलायंस ग्रुप थे उनके साथ मिलकर उनके सामने अपने आप को क्या कर दिया? अपने आप को डिवोट कर दिया. और हिटलर और उसके जो और भी जो बहुत सारे लोग थे, जो उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपने आप को क्या किया? उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर दिया. उन्होंने सुसाइड कर लिया. जब हेलमट अपने फादर की बात सुन रहा था तो उसने ये भी सुना था कि अब हमें क्या कर लेना चाहिए. अब हमें, वो अपनी वाइफ से कह रहे थे कि अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, या तो पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए, या फिर मैं अकेला अपने आप को खत्म कर लेता हूँ. दिस स्टोरी ही वाज लिसनिंग फ्रॉम हिज फादर. नाउ व्हेन जब उसने ये सारी बातें सुनी तो ही वाज अफ्रेड. अब उसको डर लगने लगा. उसको क्या डर था? कि दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. शायद उसकी मम्मा जो है वो उसको अब क्या दे देंगी? पॉइजन दे देंगी, और अब वो मर जाएगा. सो उसने बहुत दिनों तक, हिटलर जो हेलमट था, उसने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया. किस डर की वजह से? कि उसकी मम्मी उसको क्या कर देंगी? पॉइजन दे देंगी. बट ऑन द नेक्स्ट डे उसको हेलमट को एक न्यूज मिली कि उसके फादर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया. उन्होंने अपने आप को मार लिया है, गोली मार ली है उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो किसके फॉलोवर थे? वो एडोल्फ हिटलर के फॉलोवर थे. और एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को क्या कर दिया था? एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को क्या कर दिया था? डिवोट कर दिया था. किसके आगे?
जो किसके आगे उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था, किसके आगे डिवोट किया था? जो अलाइज ग्रुप थे उनके सामने। अब ये अलाइज ग्रुप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अलाइज ग्रुप? आपको वर्ल्ड वॉर याद है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर? डू यू नो अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर? मैम देखी नहीं। क्या है बताओ, चलिए आप लोग बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था स्टार्ट, कब खत्म हुआ, उसमें क्या क्या हुआ था? कैन एनीबॉडी? मैम 1714 से लेके 1719 तक तो चली थी वर्ल्ड वॉर 1। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ओके। और आप 17 बोल रहे हैं, ध्यान रखना आप अपने वर्ड्स याद रखिएगा। मैम 19 बोला है। 19 बोला है, ओके। और मैम 1914 to 1918। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था फिर? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 टू 1945 to 1945। आप ये बता सकते हैं उसमें कौन कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? कैन यू? मैम सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। पहले फर्स्ट का बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ओके। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो उनका अलाइड ग्रुप और एक्सेस ग्रुप कौन से थे? डू यू नो दैट? कैन यू टेल मी अबाउट द एक्सेस ग्रुप और अलाइज ग्रुप? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस ग्रुप एंड व्हाट डू यू मीन बाय अलाइज ग्रुप? मैम अलाइज तो यूके और फ्रांस की पावर्स। मतलब दो कंट्री एक साथ कोऑपरेट करती है किसी पर्पस के लिए, अलाइज कहते हैं। यस, आई एम लिसनिंग। और कुछ पता है आपको? हाँ मीत, व्हाट डू यू वांट टू से? मीत, मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल श्योर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आपसे। World War I began in 1914 after the against on France leading and lifting unit 1918. So 1914 से 1918 चला था वो। During the consumer January Austrian again of Christian and autonomic European forces against had been Russian, Italy, Roman, Japan and United States of America. Okay, students, tomorrow I will again ask to you about the First World War and Second World War when we discuss about the causes of World War and the impact of World War. So this is your homework. Tomorrow you will write down the question that the write a short note on First World War and Second World War. Excuse me, ma'am. Homework for tomorrow. Is it clear? Ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can I say First World War? Tomorrow we will discuss about this. आज आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए. You will write about the write a short note of First World War and about the Second World War. Ma'am. हाँ, yes. Speak up, Piyush. Ma'am, इंडिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुई? थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुई? क्यों, आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करवानी है क्या? पीयूष क्या चाहता है? किस चीज के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाना चाहते हो? किस चीज के लिए? उसको देखना होगा। मैम वो नेहा अभी चाइना में क्यों है ना, उसके लिए। किसके लिए? सॉरी मैम, तो चाइना में हुआ ना। हाँ, तो उसके लिए। चाइना में जो हुआ है, चाइना में क्या हुआ है? अरे मैम, कोरोना फैल गया ना। कोविड-19। यस मैम। चाइना ने कोविड-19 किया है, इसलिए आप थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाना चाहते हो। इसका मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है थ्रू द चाइना। यू वांट टू से दिस थिंग? यस मैम। ओके। पीयूष तू पहुंच जाना बेलन लेके ओबामा के पास। यस, डोंट स्पीक लाइक दिस बेटा, दिस इज रॉन्ग। हाउ यू आर स्पीकिंग इन द क्लास? सॉरी मैम। गलत बात है। हम लोग फ्रेंड्स हैं, आपस में हम लोगों को ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? देखो, Okay, ma'am. थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हम बाद में करेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, बट अभी तक नहीं हुई है। मयंक, you want to say something? Mayank? Yes, ma'am. What do you want to say, Mayank? मैम, जो आपने ये शॉर्ट नोट निकले को बोला है, रफ कॉपी में लिखना है ना।
हाँ, अभी आप रफ कॉपी में लिखना, फिर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, तब आप फेयर कॉपी में लिखना, पर कल रफ कॉपी में सबको लिखना है. Each and every student will write it. ओके मैम. मैम Fine. Tomorrow I will discuss about the First World War and Second World War. क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट क्लास में है. अभी मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रही हूँ. छोटा सा मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ. वर्ल्ड वॉर जो था फर्स्ट, वो 1914 में स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज ओवर एट 1918. फाइन. इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, जिसमें आपके सर्बिया कंट्रीज और ऑस्ट्रिया कंट्रीज थे, जिसमें यूके, फ्रांस, स्पेन ये सब आते हैं. ये अलाइज ग्रुप में थे. और जो नेक्स्ट ग्रुप था, जो आपका एक्सेस ग्रुप था, दैट वाज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. मैं सिर्फ आपको इतना सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो हम कल करेंगे. फाइन. तो मैंने आपको हेलमट की स्टोरी बता दी है. हेलमट जो है वो रिसेंटली, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में जो हो रहा है वो दिखाई देता है और फिर उसके बाद फ्लैशबैक पे आते हैं. तो अब हम फ्लैशबैक पे आने वाले हैं. अब हम चैप्टर के पीछे वाले बैकग्राउंड पे आने वाले हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्यों हेलमट के फादर ने अपने आप को गोली मारी थी, क्यों उन्होंने सुसाइड किया. अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हेलमट के फादर ने सुसाइड क्यों किया था, क्या रीजन रहा था. इज इट क्लियर. उससे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर की, जिसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और उस स्क्रीन में आप, सॉरी स्क्रीन फट गई है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लगा देती हूँ स्क्रीन को. ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आप लोगों को ये पता लगेगा कि किस तरीके से जो एडोल्फ हिटलर था वो एक बहुत बड़ी पावर बन गया था. इसके थ्रू हम बताएंगे स्टोरी के थ्रू. तो स्टोरी का जो फ्लैशबैक है, उससे पहले की हम कहानी पर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो एडोल्फ हिटलर था उसने अपने आप को पूरी तरह से डिक्टेटरशिप के रूप में कहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, जर्मनी में एस्टेब्लिश किया था. Now we are coming on our topic, and the first topic is Weimar Republic. This is our first topic. ये हमारा कौन सा टॉपिक है? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. इस टॉपिक में क्लियर किया हुआ है कि जो वेमायर रिपब्लिक था वो था क्या. हाउ इट वाज बर्थ ऑफ द वेमायर रिपब्लिक. जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जर्मनी ने अपनी फर्स्ट लड़ाई जो लड़ी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ी थी, वो 1914 में लड़ी थी. और कब तक लड़ी थी? 1918 तक. उसके अलाइज ग्रुप कौन कौन से थे? उसके अलाइज ग्रुप थे किसके? ऑस्ट्रियन एम्पायर के. और उसके अलाइज ग्रुप जो थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, जो मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दिया था. जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाई फ्रांस एंड बेल्जियम, and allies won defeating Germany and the Central Power in 1918. allies group जो थे उन्होंने 1918 क्या कर लिया था? उनको अपने कब्जे में कर लिया था, उनको पूरी तरह से हरा दिया था. यानी जर्मनी जो था वो 1918 में पूरी तरह से हार चुका था. जर्मनी के मोस्टली जो एनिमी थे वो कौन कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे और रशिया थे. इज इट क्लियर? Yes, इज इट ma'am. क्लियर? जर्मनी के जो एनिमीज थे वो कौन कौन से थे? England, France, and Russia. एंड रशिया. इज इट क्लियर? यहाँ पर एक मैप आपको शो हो रहा है, जिस मैप में आपको मोस्टली सब चीजें क्लियर हो रही होंगी कि अलाइड फोर्सेस क्या है और सेंट्रल फोर्सेस क्या है. व्हाट डू यू मीन अलाइड फोर्सेस एंड व्हाट डू यू मीन सेंट्रल फोर्सेस? कैन यू टेल मी अबाउट द अलाइड फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस? अलाइड फोर्सेस में कौन कौन से कंट्री बताए थे मैंने अभी? अलाइड रशिया, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. देखिए, आप मैप ढंग से देखिए, उसमें आपको ग्रेट ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, ग्रेट ब्रिटेन दिखाई दे रहा है पूरा, रशिया दिखाई दे रहा है आपको और फ्रांस दिखाई दे रहा है. यस मैम. सेंट्रल पावर पे आती हूँ तो वहां आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रिया और हंगरी दिखाई दे रहे हैं, बुल्गारिया दिखाई दे रहा है, ऑटोमन एम्पायर. इसका मतलब वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. फर्स्ट पार्ट वाज allied forces and second part was central forces. It means axis forces. Is it clear? सबको क्लियर हो गया? वर्ल्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था?
It Yes, was ma'am. divided in two parts. कौन से parts थे? First one is allied group and second one is axis Central or central power. Allied group में कौन से कंट्री दिखाई दे रहे हैं आपको? आपको रशिया दिखाई दे रहा है. Do you know हमारे वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स थी. कौन सी सुपर पावर्स थी? यूनाइटेड स्टेट्स. रशिया. If we are talking about before the 1969, तो हमें 2 पावर दिखाई देती है. First one was रशिया and यूनाइटेड. Russia. That's Russia or USSR? Yes, students. रशिया. Russia, USSR नहीं. Russia or USSR? Can you tell me? सोचो जल्दी जल्दी बोलो भाई, इतना टाइम नहीं है. Just speak up. Russia Russia. and USSR. दोनों. कल ये भी कंफर्म करके आना कि जो 2 सुपर पावर थी वो कौन सी थी? रशिया थी या यूएसएसआर थी या कोई और तीसरी भी थी? यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए. यस मैम. फर्स्ट आंसर आ गया यूएसए. यानी 2 सुपर पावर में से एक तो यूएसए हो गई. दूसरी कौन सी थी? रशिया. मैम यूएसएसआर. सेकंड वन इज यूएसएसआर. ओके. तो यानी आप लोगों को ये पता है कि 2 हमारे यहाँ पर मेन पावर्स थी, 2 सुपर पावर्स थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए. तो यूएसएसआर क्या केवल एक ही कंट्री था या उसमें और भी कंट्रीज थे? और भी कंट्रीज थे. और भी कंट्रीज थे. कौन से थे फिर? आपने तो मुझे अभी रशिया बताया था. आप लोगों ने तो मुझे अभी जस्ट रशिया बताया था. रशिया तो एक ही कंट्री हुआ ना. जल्दी बोलो स्टूडेंट्स. चलो कल आप लोग ये डिस्कस करके आएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थे, उसमें कौन से कंट्रीज थे, कौन जीता, कौन हारा, किसने वोन किया, किसने डिफीट किया. कल आप ये भी पता करके आएंगे कि 2 सुपर पावर्स कौन सी थी बिफोर द 1969 से पहले कौन सी सुपर पावर्स थी, क्या वो सुपर पावर्स आज भी हैं. आप इस सारी चीजों को पहले कल कंफर्म करके आएंगे, तब मैं ये चैप्टर आगे आपसे डिस्कस करूंगी. इज इट क्लियर? ओके मैम. यस मैम. यूएसए तो अभी पावर में है. यूएसए अभी भी पावर में एज अ सुपर पावर. रशिया है. रशिया सबसे ज्यादा रशिया. हाँ. फिर चाइना क्या है? चाइना थर्ड फोर्थ. मैम थर्ड पर है. जापान है मैम. टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जापान ही है. मैम फ्रांस. वेरी गुड. और बताइए, बहुत अच्छा डिस्कशन निकल के आ रहा है. गुड. मैम फोर्थ पे इंडिया. सॉरी, फोर्थ पे इंडिया है मैम पावर में. फोर्थ पे इंडिया. कौन सी पावर में? कैसी पावर है? आप पावर का मतलब समझते हो? पावर का मतलब सबको समझ में आता है. मयंक क्या कह रहे हो? मयंक स्पीक अप. मैम मिलिट्री पावर. मिलिट्री पावर. और न्यूक्लियर पावर. यस मैम. न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर. और वेरी गुड. मैम फाइटर प्लेन. फाइटर मैम व्हीकल पावर. मैम पीयूष क्या कह रहे हैं? वो न्यूक्लियर ही होगा पीयूष. हाँ अनुष्का, व्हाट यू आर सेइंग? मैम अभी किसी ने बोला था ना कि थर्ड पे जापान है. मैम आई थिंक थर्ड पे जर्मनी होना चाहिए. थर्ड पे नहीं होना चाहिए. थर्ड पे कौन सा होना चाहिए फिर? जर्मनी. चाइना है. नहीं मैम फोर्थ पे जर्मनी. चलिए ऐसा करना, कल आप पढ़कर आना और फिर मुझे बताना है कि कौन सी पावर्स हैं. अच्छा, एक चीज और पढ़कर आना कल आप लोग. कल एक चीज और पढ़कर आएंगे जो मैं बताऊंगी. ओके मैम. ठीक है. आप लोगों को अपनी बुक का पेज नंबर 49, ओल्ड बुक का बता रही हूँ मैं. ओल्ड बुक का पेज नंबर 49, 50, 51
और 52 मैम बस 53 तक पढ़कर आएंगे, द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस तक। कल आप लोग इतना पढ़कर आएंगे। फाइन, पढ़कर आएंगे। यस मैम। Yes, ma'am. सब पढ़कर आएंगे तब डिस्कशन में मजा आएगा, नहीं तो डिस्कशन में मजा ही नहीं आएगा, नहीं तो आधे बच्चे सो जाएंगे क्लास में। माही, फिराज, मयंक, नवीन, पराग, राशि, तनीश, वंश, यश, कुमावत, सब बच्चे पढ़कर आएंगे तब पढ़ने का मजा आएगा। कल डिस्कशन का मजा तभी आएगा। प्रांजल, आर यू लिसनिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? पूजा, सब सुन रहे हैं मुझे? कल आप सब पढ़कर आएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो, स्पीक अप। मैम हम पावरफुल कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक पावर्स भी इन्वॉल्व होती है ना, या सिर्फ मिलिट्री पावर? इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, बहुत सारी पावर होती है, न्यूक्लियर पावर, स्पेस पावर, एवरीथिंग विल बी कम इन दिस टॉपिक। पेपर में कौन आ गया? जब आपको हिटलर के बारे में पता करना है, जब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करनी है, तो आपको ये सब चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये क्लियर कब होंगी? जब हम थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज लेकर आएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे आपस में। ओके, चाहे आप 4-4, 5-5 लाइन लिखकर लेकर आना, पर पढ़कर जरूर आना। मैम एक मिनट, मैम आप बात, रियान बोलो। मैम एक मिनट टॉपिक समझा दें इनके टॉपिक अच्छे से। मैं आपको वही बोल रही हूँ रियान, कल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़कर आना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़कर आना, साथ में आप ये पढ़कर आइएगा कि कौन कौन सी 2 सुपर पावर्स हैं, या थी या अब हैं, कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं। हमारे को सुपर पावर्स के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा 2-2 लाइन की सुपर पावर होता क्या है, क्यों हम उनको सुपर पावर कहते हैं, ओके मैम। बस इतना सा पढ़कर आना है, जिससे कि मैं आप लोगों को फिर डिस्कस करूंगी ना इसके बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस, प्लीज गिव मी योर अटेंडेंस। Yes. Should we start with the attendance? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. 9th A class.